Hello dear students, today Maths 1, Chapter 2, Trigonometry 1, Exercise 2.2. Now see question number first. If 2 sin A equal to 1 equals root of 2 into cos B and pi upon 2 is less A is less pi, 3 pi upon 2 is less B is less 2 pi, then find the value of tan A upon tan A plus tan B upon cos A minus cos B. So we have to find the value of tan A plus tan B upon cos A minus cos B by using the terms 2 sin A equal to 1 and root 2 into cos B equal to 1. So now see this solution. So this question is very important and tricky question. So see the solution here. Since 2 sin A equal to 1 equal to root 2 into cos B, it is given in the question. You can check from here. So 2 sin A equals 1 and root 2 cos B equals 1. What does it mean? This means 2 sin A equal to 1 and 1 equal to root 2 cos B, or root 2 cos B equal to 1 you can say. Means there are two equations. First equation for 2 sin A equal to 1 and second equation 1 equal to root 2 cos B. There are two equations. So solving first 2 sin A equal to 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो साइन ए 2 sin A equal to 1, therefore sin A equals 1 upon 2, taking 2 on the right hand side. Using the identity sin square A plus cos square A equal to 1. Substituting the value of sin A, which is equal to half. So here square of 1 by 2 plus cos square A equals 1. Therefore cos square A equals 1 minus 1 by 2 whole square, that is 1 upon 4. Then cos square A equals, here 4 1 are 4 minus 1, that is 3 upon 4. Taking square root on both the sides, we get cos A equals plus minus root 3 upon 2. Because 3 is not perfect square, so we should write here root 3, and square root of 4 is 2. But using plus minus both the sign, it may be positive, may be negative. तो आइए अब इसको कंफर्म करते हैं कि इसमें से हमें कौन सा साइन लेना है और कौन सा इग्नोर कर देना है, और क्यों करना है उसका भी रीजन दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि a पाई अपॉन 2 इज लेस a इज लेस पाई। दिस मीन्स a लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 90 से 180, इसका जो वैल्यू दिखा रहा है कहां से, पाई अपॉन 2 का मतलब है 90 डिग्री और पाई का मीनिंग है 180 डिग्री। तो 90 से 180 के बीच में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट अभी जस्ट हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो प्लीज रेफर प्रीवियस वीडियोस फॉर द साइंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रूल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज आल्सो, एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। तो पाई अपॉन 2 इज लेस a इज लेस पाई। तो pi upon 2 is less a is less pi. What does it mean? This means a lies in the second quadrant. Therefore cos a equal to minus root 3 upon 2. इसमें से हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। तो cos a equal to minus root 3 upon 2 because cos a will be negative in the second quadrant. क्योंकि मैंने ASTC रूल बताया है प्रीवियस वीडियोज में, जाके उसको अच्छे से देख सकते हो। और इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे टोटल वीडियोस मोर देन 200 अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये ध्यान देना है कि अपने स्टैंडर्ड से सभी प्लेलिस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। तो इससे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। तो चलिए आइए फिर से यहाँ पर पहुंचते हैं कि cos a इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 बिकॉज a लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आता है हमारे पास कि अगर हमें ये cos a मिल गया और यहाँ पर है sin a, यहाँ देख रहे हो sin a इक्वल टू हाफ, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan a की, क्योंकि हमें जो टर्म फाइंड करना है उसमें tan a भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको केवल sin a cos a निकाल लिया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। नो, it's not full solution. We have to find value of tan a also. So for tan a, using the formula tan a equal to sin a upon cos a. So substituting the value of sin a, which is equal to 1 by 2, and value of cos a minus root 3 upon 2.
So 2 going by 2, 2 will be cancelled. Therefore tan a equal to minus 1 upon root of 3. तो ये तो हमें मिल गया tan a equal to minus 1 upon root 3. तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उनको मैं बॉक्स में कर देता हूँ. cos a equal to minus root 3 upon 2 and tan a equal to minus 1 upon root 3. अब इसके बाद ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग था sin a 2 sin a इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच गए cos a से पहुंच गए tan a. ठीक है, tan a भी मिल गया, cos a भी मिल गया, sin a भी मिल गया, सब मिल गया. अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर. तो सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ पर क्या है, 1 equal to root 2 cos b. So taking root 2 on the left hand side, we get cos b equal to 1 upon root 2. Using the identity, same identity है, सिर्फ इसका एंगल चेंज हो जाएगा. Since sin square b plus cos square b equal to 1. Substituting the value of cos b here, which is equal to 1 by root 2. So we get sin square b plus square of 1 upon root 2 equals 1. Therefore sin square b इक्वल्स 1 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स 1 बाई 2. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स फॉर दिस टू टर्म्स, वी गेट साइन बी इक्वल्स प्लस माइनस 1 बाई रूट 2. अब फिर से वही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हमें कौन सा साइन यहाँ पर चूज करना चाहिए, कौन सा साइन सेलेक्ट करना चाहिए. यहाँ हम साइन लेते हैं नेगेटिव, बिकॉज बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो 3 पाई अपॉन 2 लेस बी इज लेस 2 पाई. 3 पाई अपॉन 2 मीन्स 270 डिग्री और यहाँ 2 पाई का मतलब है 360. तो इसका मीनिंग हो गया कि बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, साइन बी इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, बिकॉज साइन यहाँ एंगल बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो साइन बी विल बी नेगेटिव. यहाँ पर है साइन बी, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2. अब इसके साथ में ही हमें फाइंड करना है tan बी. तो tan बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सिंस tan बी इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी, ये फॉर्मूला हो गया. तो वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ कॉस बी 1 अपॉन रूट 2, so they will be cancelled to each other. Therefore tan b equal to minus 1. तो ये हमारे पास वैल्यूज मिल गए. और एक वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो cos b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. तो ये cos b 1 बाई रूट 2 ध्यान में रखना है. tan b इक्वल टू माइनस 1. और हमें अब जो है चल करके फाइंड करना था क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b. अब ये टर्म लिखने की बारी आ गई है. अब इसको हम लोग लिखते हैं और इसमें सभी 4 वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके, या पहले तो सेलेक्ट करते हैं फिर सब्स्टिट्यूट करके इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है, कि tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b. सो वी शुड राइट नाउ द टर्म tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b इक्वल्स, देखो वैल्यू ऑफ tan a माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस tan b माइनस 1, cos a माइनस रूट 3 अपॉन 2 and value of cos b 1 by root 2. तो ये हमने सभी 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम देखते हैं कि माइनस माइनस, देखो माइनस साइन 2 टाइम्स, यहाँ पर बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, तो वी शुड टेक नेगेटिव साइन कॉमन. माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3. देखो यहाँ से रूट 3 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, माइनस साइन कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा प्लस, और रूट 3 इंटू 1 बिकम्स रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3 एंटायर अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाई. अब देखो यहाँ पर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 1 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2. तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए और माइनस साइन है कॉमन, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2. वैसे भी अगर इसको सेपरेट करके समझना चाहते हो तो फिर से यहाँ पहुंच जाओगे. देखो रूट 3 अपॉन 2 दिस टर्म, रूट 2 अपॉन 2 बिकम्स 1 बाई रूट 2, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिए तो बोथ विल बी नेगेटिव. ओके, फिर से देख लो एक बार. माइनस ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 अपॉन माइनस ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2. तो माइनस अपॉन माइनस ये हो जाएंगे कैंसिल, दैट इज प्लस. देयरफॉर tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b इक्वल्स 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2
अब देखो ये टर्म यहाँ पर है डिवाइड, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 गोज टू न्यूमरेटर एंड √3 बिकम्स इन डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3. So it is equal to 2 into 1 plus √3 upon √3 into √3 plus √2. So this is the final answer for tan A plus tan B upon cos A minus cos B. तो 2 into 1 plus √3 upon √3 into √3 plus √2. ये रहा अपना फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या यूज करना पड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट हम लोगों ने एक सिंगल इक्वेशन को 2 इक्वेशंस में ब्रेक किया। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इस क्वेश्चन का सिनॉप्सिस बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास मेन इक्वेशन था उसको हमने 2 सेपरेट इक्वेशंस, 2 अलग अलग इक्वेशंस में ब्रेक किया। जो था हमारा यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म में, एक साइन में बन गया और एक कॉस में बन गया, इक्वल टू 1 दोनों के लिए था। फिर इसके बाद इन बोथ द इक्वेशंस यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और दूसरे इक्वेशन के लिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो दोनों ही आइडेंटिटीज सेम है, सिर्फ उसमें एंगल का डिफरेंस है। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ कॉस ए और सेकंड इक्वेशन में फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ साइन बी। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिलने के बाद हमें ये भी जरूरत थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए। तो वैल्यू ऑफ tan ए भी फाइंड हो गया और इसके बाद फिर वैल्यू ऑफ tan बी भी फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है जो जिस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें 4 वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी, tan ए प्लस tan बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी। तो ये 4 वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं, जो कि ये फाइनल आंसर है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर्स आल्सो। वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो सकता है, चाहे स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो या कॉम्पिटिशन्स का। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और इसके आंसर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में भी चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। जैसे अगर हम यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये हो जाएगा 3 प्लस √6, तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, इफ साइन ए अपॉन 3 इक्वल्स साइन बी अपॉन 4 इक्वल्स 1/5। फिर से देख लो, साइन ए अपॉन 3 इक्वल्स साइन बी अपॉन 4 इक्वल्स 1/5 एंड ए बी आर एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन प्रूव दैट 4 cos A प्लस 3 cos B इक्वल्स -5। या कभी कभी प्रूव दैट न पूछ करके फाइंड भी होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos A प्लस 3 cos B इक्वल्स -5। तो फाइंड के लिए क्या आएगा, 4 cos A प्लस 3 cos B, तो भी आंसर आने वाला है -5। लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ दैट है तो इसको हमें प्रूफ करके ही दिखाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ, और प्रूफ के साथ साथ इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो गए वो भी देख लेते हैं। तो सी द प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सिंस साइन A अपॉन 3 इक्वल्स साइन B अपॉन 4 इक्वल्स 1/5, so this given equation can be written as sin A upon 3 equals 1/5 and second equation sin B upon 4 equals 1/5, means it can be written in the two different equations। यहाँ पर है हमारे sin A upon 3 equal to 1/5 and sin B upon 4 equal to 1/5। So solving these two equations and find the other trigonometric ratios which are required for the proof। Since sin A upon 3 equal to 1/5, therefore sin A equals 3/5, taking 3 on the right hand side, ये 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ कर लेना है, 3 into 1 ये हो गया 3/5। तो sin A equal to 3/5 using the identity sin square A plus cos square A equal to 1, substituting the value of sin A
which is 3 upon 5. So here square of 3 upon 5 plus cos square a equals 1. Square of 3 upon 5 is 9 upon 25. Therefore cos square a equals 1 minus 9 upon 25. Here 25 into 1, 25 minus 9, that is 16 upon 25. Therefore cos square a is 16 upon 25. Now taking square root on both sides, we get cos a equals plus minus 4 upon 5. So cos a equals plus minus 4 upon 5. Therefore cos a equals minus 4 upon 5 because a lies in the second quadrant. तो पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ चुका था. तो यहां पर है a lies in the second quadrant and we know very well cos value, any cos value is negative in the second quadrant according to property of the signs of the trigonometric functions. तो अब इसके बाद ये तो हमें मिल गया cos a इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5. आते हैं सेकंड इक्वेशन पर. फिर से जो सेकंड इक्वेशन था हमारा उसको भी सॉल्व करना है. सिंस sin b अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 5, टेकिंग 4 ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर sin b इक्वल्स 4 अपॉन 5. Using the identity sin square b plus cos square b equals 1. Therefore, square of 4 upon 5 plus square of cos b equal to 1, or you can say cos square b equal to 1 minus 16 upon 25 because square of 4 upon 5 is 16 upon 25. Now solving this we get 9 upon 25. So cos square b equals 9 upon 25. Taking square root on both sides, we get cos b equals plus minus 3 upon 5. But b lies in second quadrant, therefore cos b will be negative. So cos b equal to minus 3 upon 5. तो इस तरह से हमें टू वैल्यूज यहाँ पर बहुत ही क्लियर वैल्यूज मिल गई. cos a इक्वल टू माइनस 4 upon 5 in the first equation and cos b equal to minus 3 upon 5 from the second equation. So there are two different values for cos A and cos B. After that, what we have to prove, उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ यूज करते हैं. तो टेकिंग LHS, we get here 4 cos A plus 3 cos B. So 4 cos A plus 3 cos B, substituting the value of cos A, that is 4 into minus 4 upon 5, जो कि यहाँ से लिया गया, taken from here, and 3 cos b, that is 3 multiplied by minus 3 upon 5 taken from here. So this will be 4 into minus 4 upon 5, that is minus 16 upon 5, and here 3 into minus 3 upon 5, that is minus 9 upon 5. So both the values are negative, so adding them we get minus 25 upon 5 equals minus 5, which is equal to RHS, that is right hand side. Therefore 4 cos A plus 3 cos B equals minus 5. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका प्रूफ यहाँ पर इजीली कंप्लीट हो गया. और इसको ट्रिक से कंप्लीट करोगे तो बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो. और इसको वंस या ट्वाइस प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन को फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन सॉल्व एनी टाइम आफ्टर प्रैक्टिसिंग ट्वाइस दिस क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आने वाला है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओनली वन वैल्यू इज गिवन. देखो इन क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, इवेल्युएट 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. तो देयर इज ओनली वन वैल्यू. और दूसरी चीज ये भी नहीं बताया कि थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट. तो इफ इट इज नॉट गिवन, सो वी शुड टेक फॉर द पॉजिटिव वैल्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हम सभी को मान के चलेंगे कि दे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इफ इट इज नॉट गिवन, जैसे थीटा लाइज इन हिज क्वाड्रेंट, नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं दिया है कि थीटा का रेंज क्या है, कितने कितने के बीच में लाई करता है या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो भी नहीं दिया है. तो यहाँ पर हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान करके सॉल्व कर सकते हैं. तो tan थीटा इक्वल टू हाफ, इवेल्युएट 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. Evaluate, that is find the value of. तो यहां पर हो गया. कभी कभी यहां पर देते हैं कंप्यूटिंग द वैल्यू, कंप्यूटिंग 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. This means find the value of.
ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ से जो गिवन टर्म है वहां से स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान देना है कि हमें साइन थीटा भी फाइंड करना है, कॉस थीटा भी फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा के वैल्यूज 2 टाइम्स यहाँ पर यूज करने हैं और कॉस थीटा के भी वैल्यूज को 2 टाइम्स यूज करना है, यहाँ से देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सिंस tan थीटा इक्वल टू 1/2, वी नो दैट sec square theta equals 1 plus tan square theta, or you can say using the identity, क्या बोल सकते हो, using the identity sec square theta equals 1 plus tan square theta। देखो मैंने कल भी बताया था कि there are 3 identities in the trigonometry। कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं, फिर से रिपीट करता हूं, you can note it on your notebook। तो चलो स्टार्ट कर लो, अपना पेन पेंसिल रेडी कर लो, नोट करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी के लिए सेम नोट कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। और किसी किसी बुक में यह भी मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। तो इन ऑल द 3 फॉर्म्स कोई भी फॉर्म में लिखो, बट ऑल द 3 फॉर्म्स मीनिंग आर इक्वल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो कि है कोसेक, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट यू शुड राइट इट ऑल्सो। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो अगर मान लो हमें 1 राइट हैंड साइड में ही लिखना है, तीनों आइडेंटिटीज में हमको 1 को राइट में दिखाना है, तो ये बेस्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ साइन एंड कॉस स्क्वायर, साइन और कॉस जहां पर आते हैं उसमें पॉजिटिव है, और सेक टैन एंड कोसेक कॉट के लिए नेगेटिव साइन है, बीच में माइनस है, और इक्वल टू 1 इन ऑल द 3 आइडेंटिटीज। तो ये बाहर रखने के लिए ट्रिक अच्छा है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें टाइम टू टाइम क्वेश्चंस में अगर रिक्वायरमेंट है वहां पर कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, न्यू वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यूज करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो आइए अब सॉल्यूशंस इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सिंस tan थीटा इक्वल टू हाफ, वी नो दैट लिखो, या यूजिंग द आइडेंटिटी sec square theta equals 1 plus tan square theta, it is equal to 1 plus what is value of tan theta, अब यहां से देख सकते हो, it is equal to 1 upon 2, तो स्क्वायर ऑफ 1 upon 2 यहां लिखोगे, तो this will be 1 plus 1 by 4, तो 4 1 जा 4 plus 1 that is 5 upon 4, तो ये वैल्यू हमें मिल गई sec square theta equals 5 upon 4, taking square root on both sides, therefore sec theta equals root 5 upon 2। वैसे तो प्लस माइनस बोथ विल कम, बट थीटा is not mentioned for the quadrantal values, so for the theta it is not given for the quadrantal values, in which quadrant theta lies, in which quadrant it is not given in the question, so we should not discuss about negative or positive value, only we should select for positive, क्योंकि हमारा जो tan थीटा है वो प्लस हाफ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि हमारा सभी वैल्यूज जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी ट्रीट करेंगे, और सेक थीटा की वैल्यू लेते हैं रूट 5 अपॉन 2 विच इज पॉजिटिव। बट वी नीड टू फाइंड, लेकिन हमें सेक थीटा की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस थीटा इससे रिलेटेड है। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1। तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन सेक मीन्स 1 अपॉन रूट 5 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन रूट 5। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स 2 अपॉन रूट ऑफ 5, जो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये 2 प्लेसेस पर देख सकते हो कि ये कॉस थीटा के वैल्यूज हमें यहाँ बहुत ही जरूरत है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें कॉस थीटा यहाँ पर मिल गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5। तो हमें सेक थीटा मिला और कॉस थीटा, लेकिन हमें भी जो नेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है साइन थीटा। तो अभी तक देखो यहाँ पर फ्रॉम हियर टू हियर नो वैल्यू ऑफ साइन थीटा नहीं मिला अभी तक कहीं भी,
तो साइन थीटा के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर एंड यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज कर लिए, जो कि अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको यूज किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओनली एंगल्स विल बी चेंज्ड, आइडेंटिटी विल बी सेम, ये सिमिलर है। तो थीटा को हम कभी ए लिखते हैं, कभी बी लिखते हैं, कभी एक्स वाई जेड लिखेंगे और कभी थीटा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिखना है वो लिखो, बट आइडेंटिटी विल बी सेम। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है कॉस थीटा जो कि है 2/√5। तो वी शुड राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/√5 होल स्क्वायर इक्वल्स 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2/√5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ √5 दैट इज 5। So sin square theta equals 1 minus 4/5. Here 5 1 5 minus 4, that is 1/5. Taking square root on both the sides, we get sin theta equals 1/√5. You can say, why not plus minus 1/√5? Yes, you can write here sin theta equal to plus minus 1/√5. But according to the given value in the question, tan theta is plus half, so we should take here positive value only. So sin theta equals plus 1/√5, taking positive value for all the three trigonometric ratios, tan theta plus half given, cos theta 2/√5 and sec theta √5/2, sin theta 1/√5। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेट करके आए हुए हैं sec theta, cos theta and tan theta, सॉरी sin theta, तो सेक कॉस एंड साइन ये थ्री वैल्यूज हमने पॉजिटिव सेंस में यूज किया। तो पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करके यहाँ पर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है बिकॉज इट इज नॉट गिवन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब इसके बाद जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, इवैल्यूएट, ये टर्म को लिखना है और यहाँ पर हम सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 cos theta plus 3 sin theta equals 2 multiplied by value of sin theta. What is value of sin theta? Value of sin theta is 1/√5 from here. So 2 multiplied by 1/√5 plus 3 as it is. Value of cos theta you can check from here. It is 2/√5. So we should write here 3 into 2/√5. Entire upon 4 as it is मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा देखो क्या है 2/√5, तो दिस विल बी 4 into 2/√5 प्लस 3 into साइन थीटा दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/√5। ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/√5। अब क्या करोगे यहाँ पर देखो, हियर 2 1 2 दैट इज 2/√5 और यहाँ होगा 3 into 2 6/√5। तो ये हो गया 2 + 6 और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है √5 तो वी शुड राइट हियर 2 + 6 इन द ब्रैकेट अपॉन √5 एंटायर अपॉन। अब यहां भी देखो 4 2 जा 8 8/√5 प्लस 3 1 जा 3 दैट इज 3/√5। तो 8/√5 प्लस 3/√5, तो 8 + 3 इन द ब्रैकेट अपॉन √5। तो वी गेट 8/√5 अपॉन 11/√5। तो √5 गोइंग बाय √5 because both the denominators are equal, so they will be cancelled to each other. ये डिनोमिनेटर हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर 2 + 6 that is 8 और यहाँ 8 + 3 11, so we get 8/11. Therefore the value of 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta equals 8/11। ये है हमारा वैल्यू। वैसे अगर ये वैल्यू को और भी फास्ट कैलकुलेट करना है, those who are interested for the fast calculation and for the competitive exams and do not without using the identities, so you can solve this question also in the short form. तो इसका जो another solution है वो भी अवेलेबल है, वो भी मैं बता देता हूँ, बट you should note down it, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर हम लिख करके प्रोवाइड कर तो दें लेकिन स्टूडेंट फिर वहां पर लेजी हो जाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यू शुड स्टार्ट द राइटिंग, नोट डाउन इट्स ए शॉर्ट सोल्यूशन, जो शॉर्टकट सोल्यूशन है इसका क्या है उसको देखते हैं और स्टार्ट कर लो हाउ टू सॉल्व इट।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल टू हाफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये टर्म को लिखते हैं 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। फिर इसके नीचे लिख लो डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखना है, डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो वी गेट हियर 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा एंटायर अपॉन 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, मीन्स ईच अपॉन cos थीटा लिख लेना है। हो गया लिखकर? तो चलो अगर लिखकर यहां पर कंप्लीट हो गया तो आगे चलते हैं। अब देखो ये है 2 sin अपॉन cos, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। क्लियर? 2 tan थीटा प्लस 3, क्योंकि cos थीटा गोइंग बाय cos थीटा, तो 2 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा है, तो ओनली 4 रिमेनिंग होगा, cos cos गेट कैंसल्ड, 4 प्लस 3 tan थीटा, ये मिल गया, sin अपॉन cos बिकम्स tan। फिर से देख लो हमें यहां पर अगला स्टेप क्या मिलता है, 2 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 tan थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन हाफ, ये देखो 1/2 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2, या 3 इंटू 1/2 दैट इज 3 अपॉन 2, और उसी को सॉल्व कर लो, वी गेट 8/11, ये आंसर आ गया। तो ये है इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन, बहुत ही शॉर्ट में, विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटीज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। तो शॉर्ट ट्रिक इसका जो है वो सॉल्व कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मैं वही बताने वाला हूँ, ये सोल्यूशन डिटेल्स में नहीं दिया जाएगा। इसको करने से क्या होगा, हमारे आइडेंटिटी का प्रैक्टिस हो जाता है, आइडेंटिटी बाहर रहेगी, और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमें ट्रिक भी, एक आइडिया भी यहाँ पर मिलता रहता है। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओनली फॉर द स्पेशल क्वेश्चंस। ये सभी, और ये जो आइडेंटिटीज हैं दे आर यूजफुल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स आर यूजफुल फॉर द लिमिटेड क्वेश्चंस, फॉर सम स्पेशल क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, फिर से देख लो, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 बचेगा, और यहां पर प्लस 3, ठीक है, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो यही टर्म है यहाँ पर, और इनको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर 8/11, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में इसका सोल्यूशन देता है। तो दैट वन इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट सोल्यूशन इज बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया उसको नोट कर चुके होंगे, और उसको लिख करके प्रैक्टिस भी करेंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चन in the previous videos or the coming videos, you can ask your doubts in the latest video comment section. Mention exercise question number and your name also. So for the remaining questions and remaining chapters, देखते रहिए हमारे coming videos, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, शॉर्टकट्स के लिए और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए भी देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।